In this video, we will discuss the topic Keynesian view on inflation. This is a set of 6 videos on Keynesian theory of inflation. Keynesian theory of inflation के 6 पार्ट हैं, and in the first part we will discuss Keynesian view on inflation. John Maynard Keynes was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles and was one of the most influential economists of the 20th century. During the Great Depression of the 1930s, Keynes spearheaded a revolution in economic thinking, challenging the ideas of neoclassical economics that held that free markets would, in the short to medium term, automatically provide full employment, as long as workers were flexible in their wage demands. He argued that aggregate demand, that is, total spending in the economy, determined the overall level of economic activity, and that inadequate aggregate demand could lead to prolonged periods of high unemployment. Keynes advocated the use of fiscal and monetary policies to mitigate the adverse effects of economic recessions and depressions. He detailed these ideas in his magnum opus. Magnum opus means the best work that a writer has produced. केन्स ने जो बुक लिखी है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ऑल्सो कॉल्ड जनरल थ्योरी, पब्लिश्ड इन 1936. तो ये केन्स के बारे में हमने पढ़ा. What is the Keynesian view on inflation? According to Keynes, inflation is of two types, semi-inflation and open inflation. Before full employment, because supply will also rise with demand, there will be semi-inflation. And after full employment, there will be open inflation because supply will not rise. And it can be explained with the help of this diagram. डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. ये डायग्राम मैं आपको साथ साथ ड्रॉ करके बता देता हूँ. आप भी साथ साथ ड्रॉ कर लो ताकि जो डायग्राम की डेरिवेशन है उसका आपको डिटेल में पता चल जाए. हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. These are the axes, vertical axis and horizontal axis. Now on horizontal side, we are taking money supply. And on vertical axis, it is price and quantity. So here we are taking mainly level of employment also. This is the origin. Generally, we know that law of diminishing returns in production is applied. Law of diminishing returns means जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं
जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, बट जो आउटपुट में इंक्रीज है वो पहले से कम होता जाता है। जैसे मान लो पहले आउटपुट 10 पैदा हुआ, फिर 8 इंक्रीज हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 6 इंक्रीज हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर 4 और इंक्रीज हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आउटपुट इंक्रीज तो होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं 10, 8 इंक्रीज हो गया, 18, 6 इंक्रीज हो गया, 24, 4 इंक्रीज हो गया, 28, 2 इंक्रीज हो गया, 30। तो फिर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। तो जो आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है 10, 8, 6, 4, 2, 0, ये कम हो रहा है इंक्रीज, जिसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट। इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जनरली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, वो कुछ ऐसे बनती है। इस कर्व की जो स्लोप है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है। इट मीन्स स्लोप कम हो रही है। स्लोप मीन्स मार्जिनल, मार्जिनल कम हो रहा है। इसको प्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। एंड एट वन पॉइंट where it is highest, the total product becomes parallel to the input axis। इसके पैरेलल हो जाता है ये। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इससे आगे टोटल आउटपुट नहीं बढ़ रहा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है जहाँ तक टोटल आउटपुट बढ़ रहा था और यहाँ से टोटल आउटपुट बढ़ना, ऊपर को जाना बंद हो गया। दिस साइड प्रोडक्शन है, आउटपुट है, तो ऊपर को अगर ये जाता इट मीन्स आउटपुट ने बढ़ना था, बट आउटपुट इसके पैरेलल हो गया इनपुट की, तो नहीं बढ़ रहा। दिस इज द क्यू लाइन, आउटपुट लाइन। वर्टिकली हमने दो चीज़ें लगाई हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का, आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट के साथ हम रिलेशन बना रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ तक, इस लेवल तक अगर हम देखें, मान लो जैसे पहले हमने लेबर लगाई इतनी, तो आउटपुट हमें मिला इतना। तो ये लेबर को हमने बढ़ाया, फिर हमें आउटपुट मिला इतना। तो यहाँ तक हम लेबर को बढ़ाएंगे तो हमें इतना आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। एंड दिस इज सपोज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द लेबर फोर्स और फैक्टर्स। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ तक हमारा आउटपुट पैदा हो सकता है मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, सपोज Q1। So by employing all the resources, जो आउटपुट है वो हम पैदा कर सकते हैं Q1। This NF means the level of full employment। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिचुएशन है, दिस इज नोन एज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे जैसे मान लो मनी सप्लाई बढ़ती है या चीज़ों की डिमांड बढ़ती है किसी भी कारण से, तो हम ज़्यादा आउटपुट पैदा कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर हैं तो हम राइट जा सकते हैं। राइट जाने का मतलब, अगर हम यहाँ पर हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम, मान लो हम यहाँ पर हैं, इतने हमारे पास अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, इतना हमारा आउटपुट का लेवल है। तो अगर हमारी आने वाले टाइम में मान लो आउटपुट की डिमांड बढ़ती है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके और एम्प्लॉयमेंट देकर
हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे और इधर से हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जब हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ेगा तो उसमें प्राइसेस ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ होंगी, थोड़ी इंक्रीज़ होंगी, वो भी उतनी इंक्रीज़ होगी जितना डिमांड सप्लाई का गैप बच गया। अब देखो, डिमांड इंक्रीज़ होने से हम सप्लाई भी इंक्रीज़ कर पाए अगर हम इससे पहले हैं। तो अगर डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ है, सप्लाई कम इंक्रीज़ है, तो थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे सेमी इन्फ्लेशन। डिमांड इंक्रीज़ हुई इतनी बड़ी, तो थोड़ी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई, तो डिमांड का इंक्रीज़ ज़्यादा बच गया, इसलिए थोड़ी इन्फ्लेशन हुई। बट इस इन्फ्लेशन को कहा जाएगा सेमी इन्फ्लेशन। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी प्राइस में राइज होगा, दैट इज नोन एज सेमी इन्फ्लेशन। इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि डिमांड बढ़ने से हम और रिसोर्सेज को यूज़ करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। आउटपुट मीन सप्लाई बढ़ सकती है। बट वंस वी रीच्ड हेयर, जब हम एक बार यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर हम इस बॉक्स को दोबारा बनाएं, यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो जितना इंक्रीज डिमांड में होगा उसके प्रोपोर्शनेटली प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे ओपन इन्फ्लेशन। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जैसे ही कंट्री में किसी भी कारण से डिमांड इंक्रीज होगी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम आउटपुट को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आउटपुट इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो क्या होगा, एम्प्लॉय आउटपुट क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है और रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। तो अगर इससे ज़्यादा हमारी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, बिकॉज ऑफ नो इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइसेस विल राइज प्रोपोर्शनेटली। तो प्राइस लेवल जो होगा वो ऐसे करके कहीं ऊपर को चला जाएगा। तो दिस विल बी द प्राइस लाइन। बिकॉज आउटपुट ने बढ़ना छोड़ दिया, तो प्राइस आगे निकल गया, और यू कैन से दिस इज द ओपन इन्फ्लेशन। सो आफ्टर दिस पॉइंट in this side there is the open inflation. So this was about the Keynesian view on inflation. For demand pull theory of inflation, inflationary gap, demand pull inflation with the help of ISLM, cost push inflation, cost push inflation with the help of ISLM. Must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.